So write down the first question. I'll send it in the chat box. Copy down this question. The question is, your state government has banned the use of plastic bags. You are Amarjeet, a reporter. Write a report on how the ban is being ignored and what damage the indiscriminate use of plastic bags is causing to the environment. Write down this question. Can everybody see the question? You're supposed to write a report on how plastic bags are disturbing the environment even after being banned by the state government. Okay. Copy down the answer. Can you see the answer clearly? या कुछ blur वगैरह है क्या? The next question is also a report. Write down this question. The question is, your school organized an exhibition cum sale of the items prepared under work experience certificate by your school students. There was an overwhelming response from the public. Prepare a report in 100-125 words for a local daily. Again, local daily पढ़ के क्या समझ आता है? That it's a newspaper report. You are the coordinator for socio activities, Neeta School, Gurgaon. Write down the question. Copy down the answer. See, in this answer, what all you have to mention कि कौन से items थे. So यहाँ पर लिखा है a wide array of items such as candles, greeting cards, jewelry, boxes,
wooden handicraft had been prepared by the talented students. The money which was collected from the sale of the items would be donated to an old age home in the vicinity of the school. हो गया क्या? There's a list of synonyms and antonyms. Okay, एकदम last में आपके book में दिया होगा when all the 13 chapters get complete. So please make sure to read them as well. You never know, any question could be asked, and that entire list has been taken from your scanner. The entire from Sale of Goods Act. Now please be little, like, open your ears and open your eyes and please answer. Okay, after reading the question, most of the questions we have already written it, like I had sent it on the group. Okay, the first one, I'll read out the entire case. ठीक है, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बताना. So question 1, for the purpose of making uniform for the employees, Mr. Yadav bought dark blue colored cloth from Vivek, but did not disclose to the seller the purpose of the said purchase. When you read this line, automatically the answer should be framed. ठीक है, अगर ये फर्स्ट टू सेंटेंसेस पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं रहा है कि कौन से प्रोविजन में दिया है, सो फिर पूरा भी पढ़ लोगे तो भी पते नहीं पढ़ने. ठीक है, क्योंकि बाकी दिस इज जस्ट वेस्ट. आंसर यहीं पर पता चल जाता है. यहाँ पर जो परचेज के बाद जो फुल स्टॉप है, इन दीज टू लाइंस यू शुड बी एबल टू फ्रेम द आंसर. अब बाकी यहाँ से जो पढ़ोगे, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ठीक है. Okay, when uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, and carriage linen. Advise Mr. Yadav whether he is entitled to have any remedy under the Sale of Goods Act. Atta sanga, does he have any remedy or no? Correct, because he should have told the purpose of buying. He will not be entitled to have any remedy as purpose was not disclosed to the seller. Correct. ठीक है. This question relates to unit 2. चाहिए तो लिख लो. Unit number 2. यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में बताया है that he did not disclose the seller the purpose of the said purchase. तो अगर आप कोई ऐसा कमोडिटी ले रहे हो जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे यहाँ पर उसने क्या लिया था, क्लॉथ. करेक्ट. अब क्लॉथ से तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, राइट. सो when you are purchasing such product which has multiple uses, so at that time you have to tell the seller that for which purpose you are purchasing it. ठीक है. अगर आप उसे बता नहीं रही हो
जैसे यहाँ पर लिखा है he did not disclose to the seller the purpose. So if you hide the purpose or if you have not disclosed it, अगर उसके बाद जाके unfit निकलता है, जैसे यहाँ पर लिखा है it was found unfit, so now in this case it is not the seller's liability. ठीक है, so Mr. Yadav being the buyer has no remedy in this case. ठीक है, so write down if you want that this question is related to unit number 2. Okay. Question 2. Ram sells 200 bales of cotton to Sham. Okay, so I'll write down here Ram Sham is the seller, he is the buyer. ठीक है, कितने bales बेचे? 200. So 200 bales of cloth. ठीक है, आगे क्या हुआ? He sends 100 bales by lorry and 100 bales by railway. ठीक है, तो उसने categorize किया है. Sham receives the delivery of 100 bales which was sent by lorry. But before he receives the delivery sent by railway, he becomes bankrupt. ठीक है. So once let us again understand the facts. Ram is the seller, Sham is the buyer. ठीक है. अब seller ने buyer को 200 bales of cloth sell किया. कैसे sell किया? 100 by lorry, और ये जो 100 by lorry sell किया ये बायर को मिल चुके हैं. ठीक है, अब जो रिमेनिंग 100 है दैट इज बाय रेलवे, बाय रेल. ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पर बट बिफोर द ही रिसीव्स द डिलीवरी सेंट बाय रेल ही बिकम्स बैंकरप्ट. कौन बैंकरप्ट बन गया? ये बायर. ठीक है, बायर बिकम्स बैंकरप्ट. सो अब इतना पढ़ के हमें इतना तो समझ आ जाता है कि बायर के पास ये वाले 100 बेल्स हैं, राइट, और ये वाले नहीं हैं. आगे पढ़ो क्या लिखा है. The official receiver on Sham's insolvency claims the good. Decide the case with reference to the provisions of SOGA. बताओ. Okay, I'll read out Sahil's answer. देखो whether you agree or not. He cannot claim the goods, but he can stop them in transit till the buyer pays for them. Unit 4, stoppage of goods in transit. Very correct. ठीक है, तो मतलब क्या कि अब देखो ये जो रेल वाले 100 बेल्स हैं ये अब तक बायर को मिले हैं क्या? द आंसर इज नहीं. अब सेलर को पता चल चुका है कि बायर बैंकरप्ट हो गया है. सो इन दिस केस द सेलर विल विथहोल्ड, द सेलर विल स्टॉप दीज गुड्स विच आर इन ट्रांजिट. क्यों? क्योंकि उसे ऑलरेडी पता चल गया कि भाई बायर क्या बन चुका है? बैंकरप्ट. So when the seller is aware that he's become bankrupt, so does it make any sense कि ये फिर भी इसे goods बेचेगा? नहीं ना, he will claim these goods back. अगर ये transit में है तो वो उनको stop कर देगा. So he will stop those goods which are in transit. ठीक है, so यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अच्छा, one more thing, ये जो right है specific, कौन सा right है? Right of stoppage of goods. Correct? ये apply कब होता है? सिर्फ तब अप्लाई होता है जब बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ पर हमें फैक्ट में दिया था दैट ही इज बिकम बैंकरप्ट. ठीक है, बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सो दिस राइट इज एप्लीकेबल. आई विल आल्सो शो यू द आंसर. सो दिस राइट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ही बिकम्स बैंकरप्ट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. So yeah, answer is Ram being still unpaid can stop 100 bales of cotton which is sent by railway as the goods are in transit. Very correct. ठीक है. Next question, ये तो वापस से direct question आ गया. State briefly the essential elements of contract of sale. This question relates to unit number 1. ठीक है, start में ही होगा essential elements of contract of sale.
ओके, इट्स जस्ट अ थ्योरी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी. ये भी आपके नोट्स में है. व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज वारंटी. व्हेन शैल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी. ये डिफरेंस के नीचे ये वाला पॉइंट दिया है कि कब हम कंडीशन को वारंटी समझेंगे. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हेन शैल a breach of condition be treated as breach of warranty under provisions of SOGA. ठीक है. So वो जो डिफरेंस दिया है, दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑफ यूनिट नंबर 2. करेक्ट. वो डिफरेंस के नीचे ही ये वाला पॉइंट भी दिया है कि आप कब कंडीशन को वारंटी समझ सकते हो. ओके. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. बताओ ये कौन से यूनिट का है. यूनिट नंबर 3. करेक्ट. सारे रूल्स दिए हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस. कैन यू जस्ट टेल मी द पेज नंबर. इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. करेक्ट. ये सारे पॉइंट्स हैं, प्लेस, टाइम वगैरह. मुझे बस पेज नंबर बता दो. Okay, so these are the answers of the questions we just discussed. देखो फर्स्ट वाला, I'll read out the answer. फर्स्ट वाला क्या था, फिटनेस ऑफ क्लॉथ्स. तो हमने डिस्कस क्या किया, that he will not get any remedy. Correct. I'll just read it out to you. Okay. As per the provisions of section 16 of SOGA, an implied condition in a contract of sale that an article is fit for a particular purpose only rises when the purpose for the goods are supplied is known to the seller. ठीक है. तो ये बोल क्या रहे हैं कि अगर बायर को पता है पर्पस, अगर सेलर ने उसे डिस्क्लोज किया होता तो रेमेडी मिलती थी बायर को. बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायर ने डिस्क्लोज नहीं किया. ठीक है. देखो यहाँ पर लिखा है, बट ही डिड नॉट डू सो. Therefore, the implied condition, that is fitness, will not apply. Hence, the buyer will not succeed in getting any remedy on the seller under the SOGA. ठीक है. तो अब उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो कोई रेमेडी नहीं बनती है. ठीक है. नेक्स्ट आंसर देख लो, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स वाला. So in short, what all you have to mention, that right of stoppage of goods will be available to an unpaid seller. और ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं, ये आपके सारे नोट्स में दिया है. सेलर अनपेड होना चाहिए. ठीक है. ही मस्ट हैव पार्टेड विद द गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट. ठीक है. रेल में थे गुड्स. द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, तभी आप राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स को अप्लाई कर सकते हो. और लास्ट क्या है, अगर कोई और भी प्रोविजंस है तो वो भी सारे फुलफिल हो जाने चाहिए. सो कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, अप्लाइंग द प्रोविजंस, राम इज स्टिल अनपेड and he can stop the 100 bales of cotton which are sent by railway as these goods are still in transit. ठीक है. तो first give an introduction, mention all these conditions. और यहाँ पर important क्या है कि आप अपना एक ओपिनियन फ्रेम करो. सो कंक्लूजन को डायरेक्टली 1.5 मार्क होता है. ठीक है. सो इफ यू मेंशन द प्रोविजन बट इफ यू फॉरगेट टू मेंशन दिस कंक्लूडिंग लाइन तो फिर मार्क्स कट होंगे. ठीक है. तो आपको प्रोविजन बता के वो प्रोविजन पर डिपेंड होके अपना ओपिनियन फ्रेम करना है. ओके. अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है फिर भी वो थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड मांगता है तो फिर सी, अब ये यूजुअली बहुत बार होता है दैट द पर्सन रिक्वेस्ट कि भाई मैं फॉर नाउ करंटली मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ. ठीक है. बट आई प्रॉमिस टू पे यू इन फ्यूचर. तो अब लॉ ने इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं बनाया है. अगेन अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, सो इफ इट इज म्यूचुअली अग्रीएबल बाय बोथ द पार्टीज देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैरिड फॉरवर्ड.
ठीक है। और अगर सेलर को यकीन नहीं है, ठीक है, इफ द सेलर फील्स दैट यार ये तो ब्लफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इज अ फ्रॉड पर्सन, ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया है, अब क्यों इसमें इसके प्रोमिसेस पर मैं बिलीव करूं, राइट? सो देन द कॉन्ट्रैक्ट विल एंड देयर एंड देयर एंड ही विल जस्ट कीप दोज गुड्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर दोनों पार्टीज दे म्यूचुअली अग्री, देन थिंग्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डायरेक्टली ये था, थ्योरी क्वेश्चन था, करेक्ट, कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो क्या क्या है, ये आपके अगेन नोट्स में दिया है, सम अराउंड सेकंड और थर्ड पेज। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, कौन कौन? बायर एंड सेलर। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? कि आप कर, व्हाट आर यू सेलिंग एंड व्हाट आर यू बाइंग, सो देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट मैटर। कंसिडरेशन होना चाहिए, property should be transferred, that is ownership. Contract, it must be absolute और conditional, ठीक है, या तो आप absolute रखो या तो कोई conditions हैं तो वैसे भी frame कर सकते हो, and all other essential elements should be followed, ठीक है। So in short there are 6 elements। तो ये तो खैर लर्न करने का भी कोई आंसर नहीं है, यू कैन जस्ट, दिस इज कॉमन सेंस, टू पार्टीज, प्राइस, कंसिडरेशन, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उस पर ज्यादा दिमाग मत फोड़ना, ठीक है, बहुत कॉमन कॉमन वाली चीज है ये तो। सी 4 मार्क्स के लिए आता है तो जितना यहाँ पर आंसर दिया है उतना इनफ है। 6 मार्क्स के लिए फर्स्टली आंसर आएगा ही नहीं, तो आप सोचो ही मत, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए दे हैव अ लॉट फॉर 60 मार्क्स टू बी आस्क्ड। सो 6 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो फिर मतलब इट्स नॉट पॉसिबल रादर, सो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग। बट अगर फिर भी आपको डाउट है, सो देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच पॉइंट इन डिटेल, ठीक है। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स आंसर शीट कौन सा? द ones they have actually written it like in exam? I don't have any answer sheet for the test जो I used to, अच्छा अब वो या I don't have it ना, वो सब तो क्लास में होगा। I don't have anything in I'll see, अगर मेरा क्लास जाना होता है so I'll get it from there and I'll just send you the photos of it, but currently I don't have it क्योंकि वो लोग तो वहीं पर बैठ के टेस्ट लिखते थे in the last few months, ठीक है। What was the highest? I think it was around 72. 72 was the highest. Okay, last question देख लो। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो अगर देखो आपको डिफरेंस पूछा है, सो इट्स बेटर कि आप वो जो कॉलम है ना, ऐसा वाला जो आप बनाते हो, देन यू prepare the division and then you write, that is much preferable at least according to me, ठीक है। उसमें क्या डायरेक्ट मार्किंग हो जाता है और मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस इज ऑल्सो फाइन बट देन आई वुडेंट रिकमेंड। अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस भी पॉइंट वाइज लिखा है, ठीक है। सो एनी विच वेज यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई डू दे राइट इट पॉइंट वाइज? बिकॉज एट टाइम्स यू नो यू माइट इवन नॉट फील, मतलब आपको ये जो बॉक्स है, ठीक है, फिर आप ये जो बीच में ना, इसका भी टाइम नहीं मिलेगा in exam, ठीक है। and especially if you are a slow writer, so you have to do things quickly। वहां पर ऐसे डे ड्रीमिंग मत करना, सोचना मत कि इसका आंसर क्या होगा। if you know answers, if you do not know some answer, for now, for the timing, leave some space and go to the next answer, ठीक है। वहां पर इतना टाइम होगा नहीं, जो आंसर आता है उसको भी लिखने के लिए काफी टाइम लगेगा। सो दैट इज द रीजन आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू
to keep practicing. Practice के अलावा there is no option. So अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ी हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है? नहीं कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक एग्जाम इज द फर्स्ट, शुड बी योर फर्स्ट प्रैक्टिस राउंड, है ना? कि एग्जाम में ही पहली बार पेन उठा रहे हो, एटलीस्ट फॉर द लॉ सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें देयर वर टू पार्ट्स, एक तो डिफरेंस था, है ना? एक डिफरेंस था और एक क्या था, that when condition is treated as warranty. So again, there are 3 points in it. So this much is preferable. ज़्यादा fancy या decoration मत करना. Just be to the point. Also, one thing, this is something which I have noticed in the recent test which I had taken for 12th standard. ठीक है? अब उन्होंने क्या किया था? Just for an example, अगर ये क्वेश्चन पूछा है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, उनका सपोज कोई दूसरा क्वेश्चन है, सो दे विल राइट यहाँ पर आंसर 5 जो भी है, एंड डायरेक्टली दे विल स्टार्ट देयर आंसर, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट, ठीक है? अब गलती क्या है यहाँ पर कि उन्होंने ना ये जो हेडिंग है ना, यही लिखा नहीं है, सो दे एक्सपेक्ट कि भाई एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है, तो नो डाउट दिस इज अ वैलिड थिंग कि एग्जामिनर को ऑलरेडी, जो चेकर है उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सा आंसर लिखा हुआ है, बट डू नॉट मिस ऑन टू दिस हेडिंग। ओके, अगर क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन ये था, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, तो बस डायरेक्टली लिखते मत बैठना, फर्स्ट राइट डाउन द टाइटल, द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर ये आंसर खत्म होता है, वापस उन्होंने एक लाइन में लिखा है that following are according to this section, breach of condition can be treated as warranty in the following circumstances. अब अगर चाहिए तो ये लोग डायरेक्टली यहाँ से आंसर पॉइंट 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, राइट? सो यू हैव टू डिफरेंशिएट, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन में दे हैड आस्क्ड 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि एक तो पहले डिफरेंस बता दो और एक ये बता दो कि व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो पहले जस्ट राइट डाउन दिस वन लाइन। नहीं, यहाँ पर इंट्रो की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको पूछा है डिफरेंस एंड सी, ये आप ओसी का पेपर थोड़ी लिख रहे हो ना कि आपको हर आंसर पे इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। सी, आई विल टेल यू सम आंसर्स। अब स्पीकिंग ऑफ सोगा, यूनिट 3 में एक आंसर है, नीमो दैट क्विड नॉन प्रो, राइट? ऐसे एक लैटिन फ्रेज है विच सेज दैट, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर seller, even though if the person is not the seller, still he can sell the property, ठीक है? तो इस केस में इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इसमें स्टार्ट कैसे करोगे, आप पहले जनरल प्रिंसिपल लिखोगे। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि जो ओनर है वही सेलर बन सकता है, करेक्ट? सही सी बात है। इफ यू आर द ओनर ऑफ दिस पेन, देन ओनली यू कैन सेल दिस पेन। ये क्या हो गया? ये जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब हमको एक्सेप्शंस लिखने हैं। एक्सेप्शंस में क्या आएगा कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं जहां पर अगर आप ओनर नहीं भी हो, स्टिल यू कैन सेल द प्रॉपर्टी। सो इन दिस केस, डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जनरल प्रिंसिपल पहले बताना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी चीज का एक्सेप्शन पूछा है तो पहले इंट्रोडक्शन में राइट डाउन द जनरल प्रिंसिपल एंड देन स्टार्ट विथ योर एक्सेप्शंस, ठीक है? दिस इज प्रेफरेबल। Okay, so this is done. I have some more, you can say 10 to 12, I have some more questions that we can see tomorrow. Also, if you have any doubt, please make sure that you ask in this time, ठीक है? Baki, I have already informed you about solving November 19 BCR portion, ठीक है? And then you can send it to me, I'll mark them. These answers, which this one, ये पूरा screenshot, okay, चलेगा।